Hello everybody, welcome back to ACCC classes. Today we'll be completing the rest of the chapter in this lecture. So without wasting any time, let's get started. So first, we'll be reading the other basic organizational concepts, which is the second part of this chapter. Now it says separation of direction and management. So इसका मतलब क्या होता है separation of direction and management? इसका मतलब है जो कंपनी चल रहा है उसमें जो चलाने वाले लोग हैं और जो मेन हेड है वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, राइट? ये जनरली पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में बहुत होता है, स्मॉल बिजनेसेस में नहीं होता है, बिकॉज द स्मॉल बिजनेस ओनर ही खुद पूरे ऑपरेशंस देखता है, बट डायरेक्टर्स ही अपॉइंट्स द मैनेजर्स सो दैट द मैनेजर कैन कंट्रोल हिज बिजनेस। अंडरस्टूड? ठीक है, डिफरेंट होता है, बस ये बात है। अभी थोड़ा बुकिश लैंग्वेज पे। ownership and man ownership and management of larger organizations are often separated. Now this is especially common in larger companies where the owners elect directors to run the company on their behalf. जी, जनरली अब जैसे हम I'll be specifically talking about us. So we as retailer, we are called as, जो आप है, मैं हूँ, अदर आपके दोस्त हैं, उनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। नाउ इनके पास ज़्यादा कुछ वो क्या पावर नहीं होता है टू elect द मैनेजर्स। ये बात अलग है, ऑल्दो वी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी बट वी डोंट हैव दैट मच पावर। सो द investors who have a good stake, right? Now they have the power to elect the managers. Okay, sorry, elect the directors to run the company. Now, in order to ensure that directors are running the business in the best interest of the owners, many safeguards and controls are put into place. Okay. Now, why is this why is this a topic, right? मालूम है कि डायरेक्टर्स और जो मैनेजर्स होते हैं वो सेपरेट है होते हैं, ओके, बट व्हाई इज दिस अ टॉपिक? दिस इज अ टॉपिक बिकॉज इट व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, राइट? जो डायरेक्टर्स है उनको ज़्यादा टाइम मिलता है to focus on the various aspects of the business. Now, this means that, for example, the directors may decide the organization is going to launch a new product or will open a chain of new stores. ठीक है, और एक डिसीजन हो सकता है कि अपने इन्वेस्टर से हम पैसा कैसा रेज करें, राइट? दिस इज ऑल्सो की डिसीजन विच द डायरेक्टर्स डू, सी? ओके, the managers will be in charge of decisions such as hiring, firing junior staff, and dealing with customer complaints. Understood? Okay, next. Okay, second topic, scalar chain क्या होता है, right? So I'll write scalar chain, right? It means that from top to bottom communication, top to bottom communication. सपोज यहाँ पे हेड है, ठीक है, यहाँ पे हेड, इसको आप एच ले लीजिए, ऐसे जा रहा है। सपोज टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, सो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, राइट? डी, ई, एफ, इसको हम स्केलर चेन बोलते हैं। अंडरस्टूड? सो स्केलर चेन इज व्हाट, व्हेन यू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दिस, दिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट डज नॉट गो फ्रॉम व्हाट बॉटम टू टॉप। अंडरस्टूड? ये ऐसे नीचे होता है, राइट? इट्स अ डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी आ जाती है और जब बी को बहुत जरूरी हो जाता है कि ही हैज टू कम्युनिकेट टू ई, दिस इज एन एक्स्ट्रा टर्म व्हिच आई एम टेलिंग यू, दिस इज कॉल्ड एज गैंग प्लान। ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है बुक में, बट दिस इज अ टर्म, एक याद कर लीजिए आप, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, स्केलर चेन हो गया, बुकिश नॉलेज, बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। नाउ this is the line of authority which can be traced upward on the chain of command from the most senior member to staff to the most junior member. Scalar chain हमें ये भी बोलता है कि कितने, it basically tells you the levels of management. Understood? Top level, middle level, lower level. Generally यही होता है। Nothing to worry, बस definition मालूम होना चाहिए इसका क्या प्लान है। ये gang plan is just an extra information. Okay. Next is span of control. Now what do you mean by span of control? एक हेड के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, that is called span of control. How many employees I am able to control is called a span of control. Understood? Span of control has basically three main forms. One is the nature, okay, one is location of the personnel, one is the type of the person. Now nature क्या होता है, right?
मोर रेपिटेटिव काम है, तो मेरा अभी जैसे मोर रेपिटेटिव है, ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा, अब इसको और लोग लगाने पड़ेंगे वो काम करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू कंट्रोल मोर सबऑर्डिनेट्स, he has to control more subordinates under him. So this is called nature of work. Okay. Second one is type of person. अगर मेरे पास मोर स्किल्ड है, ठीक है, मोर स्किल्ड एम्प्लॉयज है, मोर नॉलेजेबल एम्प्लॉयज है, अगेन द स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी मच मोर वाइडर rather than पर्सन जो बहुत डम होता है और जो उसको काम करना नहीं आता, ठीक है. नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ द पर्सन. अगर वो लोग बहुत इजीली एक्सेसिबल है, इफ द एम्प्लॉयज आर इजीली एक्सेसिबल, देन द व्हाट यू कॉल द स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वाइडर. अंडरस्टूड. अगेन सो थ्री फॉर्म्स होते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के. पहले स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है, मतलब एक सबऑर्डिनेट, एक हेड के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल. इट हैज थ्री फॉर्म्स. वन इज नेचर ऑफ वर्क, सेकंड वन इज type of personnel, third one is location from person, location of the person. Understood? Three forms, that's it. Okay, tall and flat organizations, ये खाली एक रीडिंग है, इसमें हाईली डाउट का क्वेश्चन भी आ सकता है. सो अगेन विल रीड इट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टॉल ऑर्गेनाइजेशन? नाउ अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा स्केलर चेन है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, लंबा स्केलर चेन है. एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब क्या, जो टॉप हेड है, राइट, अगर सपोज अभी ये मैं एक और ले लेता हूँ, ये हेड है, ठीक है, इसको हेड लिख देते हैं, एंड ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ओके, एफ है, जी है. नाउ इट हैज अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल. मतलब क्या, जो हेड है उसके पास बहुत कम आइडिया है कि दूसरे एम्प्लॉयज कर रहे क्या, मतलब क्या ही उसका उतना कंट्रोल नहीं है, राइट. सो इट हैज अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल. यही फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में few levels of management but wide span of control. Understood? So tall and flat organizations. हाँ. नाउ जो टॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज, हाँ, सो जो टॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें क्या होता है, लॉन्गर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ये है, ये आपको नोट लेना चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डिफरेंस में प्रॉब्लम होता है. ओके. और ये मोर ब्यूरोक्रेटिक होता है, राइट. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इसलिए ये बहुत बहुत टाइम लेता है डिसीजन मेकिंग, एंड दिस अल्टीमेट ब्रिंग्स डाउन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नाउ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज को ज्यादा मौका नहीं मिलता है अपने आप को ग्रो करने के लिए. दे आर नॉट केपेबल ऑफ यू नो ग्रोइंग द पर्सनल नीड्स. ओके. यहाँ पे एम्प्लॉयज हैव फ्यूअर चांसेस. ट्रू. ठीक है, एम्प्लॉयज हैव फ्यूअर चांसेस. टॉल, फ्लैट, डेफिनेशन और डिफरेंस. डेफिनेशन एक बार के लिए याद हो जाएगा, डिफरेंस याद कर लेना, वो बहुत मेन होता है. नेक्स्ट, फटाफट होगा. अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑफशोरिंग बताया था, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ. ऑफशोरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग सम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन फ्रॉम कंट्री टू अनदर. आउटसोर्सिंग का मतलब है मैं एक बिजनेस को, मेरा एक काम है दूसरे बिजनेस को दे देता हूँ, बट जो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है उसको हम ऑफशोरिंग बोलते हैं. सिंपल. ऑफशोरिंग मतलब क्या, कंट्री टू कंट्री, ये याद रखना. ठीक है. आउटसोर्सिंग ऑफशोरिंग में डिफरेंस है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, मेनी कंपनीज इन यूके हैव मूव देयर कस्टमर कॉल सेंटर्स टू अदर कंट्रीज सच एज इंडिया एंड फिलीपींस. दीज कंट्रीज have significantly lower wage rates than the UK, making the call centers cheaper for the offshoring company to operate. Cool. Okay. Oh, okay. So shared services approach भी easy है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं. So shared services approach, right? ये मैं एग्जांपल से पढ़ूंगा. So just a second, मैं पानी पी लेता हूँ.
तो शेयर्ड सर्विसेज अप्रोच क्या होता है? आप एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, आपके में बहुत डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो आपके पास सेल्स होगा, मैं डिपार्टमेंट, फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चर याद करो प्रीवियस लेक्चर का फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो क्या था? मेरे पास सेल्स होता था, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। मेरे पास क्या होता था? और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता था, ठीक है। एंड आई शब एच आर डिपार्टमेंट ऑल्सो, मेरे पास एच आर डिपार्टमेंट भी है। एच आर डिपार्टमेंट मतलब जो एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसको एच आर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं इसे, ओके। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर एक आईटी होगा, ठीक है, आईटी होगा जो मेनली टेक्निकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान ध्यान देगा। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट मतलब जो जैसे बेसिकली जो होलसेलर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स का जो सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या सॉफ्टवेयर सही चल रहा है नहीं चल रहा है। सेम गोस फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेम गोस फॉर एचआर डिपार्टमेंट। Is that software working right or not is the responsibility of the IT department. Now each department will have an IT person. What is shared services approach? Now you group all of these what you call IT people into one segment. Simple. That's it. Nothing else. Nothing else is to build. Okay. Now why? Why do you do it? Now this is because. Wait for just a second. This is because first one, better service. Okay, better service, because when you're surrounded by your by your team who does the same work, you will definitely produce the maximum output for your desired customer, for your desired team, okay, for your desired output. Second one is it reduces duplication of efforts. Cool. What do you mean by duplication of efforts? Suppose let's take an example. Suppose सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में आईटी आईटी तो काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई काम है जो तीनों तीनों डिपार्टमेंट में बहुत रिपीटेटिव है, बहुत सेम है, सिमिलर है क्या? अगर मैं अगर सिमिलर है और मैं आईटी, ये पूरे आईटी के ग्रुप को, ठीक है, एक ही टीम में ला लूं, तो क्या हो जाएगा? जो जो सिमिलर टास्क है वो सिर्फ एक ही बंदा करेगा इंस्टेड ऑफ टू पीपल वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। So this will reduce the duplication of efforts, which will in turn result in cost saving. Okay? क्योंकि वो एम्प्लॉय का कॉस्ट तो आपका हट जा रहा है, ठीक है। तो शेयर सर्विसेज अप्रोच यही होता है। अंडरस्टूड? अगेन बस मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। आप एक कंपनी चला रहे हो, आपके पास सेल्स रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, और क्या रहेगा? एचआर डिपार्टमेंट। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास एक कॉमन चीज रहेगी जो आईटी, सपोज आईटी ले लो, ठीक है। और अगर मैं वो सारे आईटी लोगों को ग्रुप कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड शेयर सर्विसेज अप्रोच। व्हाई इज दिस सो बेनिफिशियल? फर्स्ट वन इज बेटर सर्विस, सेकंड वन इज रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। जो बंदा, जो काम दो लोग कर रहे थे अभी वो एक ही करेगा, और इसके क्या हो जाएगा? कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, बिकॉज वो अभी एक एम्प्लॉय की कॉस्ट मेरी नहीं हुई। ओके, कूल। अब सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो ट्वेल्थ में अगेन सीबीएसई पढ़े होंगे उनको तो डेफिनेटली ये मालूम होगा, कुछ भी नहीं। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर इज विद द अथॉरिटी, द अथॉरिटी, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसेंटर, द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिंपल, उतना ही है। देयर इज नॉट, दिस इज द डिफरेंस। पावर is distributed, okay, distributed to lower levels of management, okay, cool। so centralization मतलब क्या? जो मेन हेड है उनके पास ही डिसीजन रहेगा, दे आर द फाइनल डिसीजन मेकर्स। nobody else will be involved in the decision making process. Finish. Decentralization will happen because the power is distributed to
the lower level of management. Okay. Now, what are the factors which will affect decentralization? Easy, right? Don't mug up this. It's very easy. First one is management style. Sorry, guys. First one is management style. Okay. What do you mean by management style, right? Uh, हम सब ने पढ़ा है what are the three main types of leadership. One is autocratic, one is democratic, and one is free reign leader, right? अगर the अगर the business is runs on an autocratic model leadership, right? Then it is called as centralization. For those people who don't know what is autocratic leadership का मतलब ये होता है बस वो ही डिसाइड करेगा. ही इज द फाइनल डिसीजन मेकर. कहाँ पे पाया जाता है, कौन से बिजनेसेस जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी होती है, बिकॉज द ओनर्स आर द फाइनल डिसीजन मेकर्स. दे विल नॉट आस्क द एम्प्लॉयज व्हाट टू डू. ठीक है. अगर ऑटोक्रेटिक होता है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक मतलब क्या, सेंट्रलाइजेशन. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में द लीडर, ये ऊपर कैसे चला गया, हाँ, ऑटोक्रेटिक मतलब क्या, ऑटोक्रेटिक मतलब सेंट्रलाइजेशन होगा. सेंट्रलाइजेशन क्या, जो लीडर है he will not ask the employees for any suggestions. He will analyze, he will take the final decision making process. Understood? Final decision. So centralization हो जाएगा. ये अगर डेमोक्रेटिक लीडर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अंडरस्टैंड? ये फर्स्ट. ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग लिख देना, फैक्टर्स विच विल अफेक्ट डिसेंट्रलाइजेशन. आई एम नॉट राइटिंग दैट, टाइम वेस्ट होगा. सेकंड, मैनेजमेंट स्टाइल हो गया. सेकंड इज एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज. ठीक है, एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज लिख देता हूँ. एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या, क्या मेरे एम्प्लॉयज के पास डिजायर्ड स्किल्स है. अगर है तो मैं डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करूंगा, नहीं है तो मैं सेंट्रलाइजेशन फॉलो करूंगा. इतना ही है ये पॉइंट में. अगेन, एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, अगर मेरे एम्प्लॉयज के पास स्किल्स है, if he has a desired skills, I will follow decentralization, otherwise I will follow centralization. Simple, खत्म. Second, geographic spread, right? अगर आपका बिजनेस बहुत ही जोग्राफिकल एरियाज में स्प्रेड है, जैसे आप जियो मार्ट ले लीजिए. जियो मार्ट क्या है, नॉर्थ में दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, गुजरात में भी है, असम में भी है, राइट? चारों जगह है. तो हाउ, तो ये क्या हुआ, जोग्राफिक स्प्रेड हुआ. नाउ रिला नाउ ही हैज टू डिस्ट्रीब्यूट पावर्स इवन इफ ही वुड नॉट लाइक टू, राइट? ही हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स एंड थस decentralization would be followed. Simple. The bigger the business, the bigger the decentralization. हमेशा याद रखना. It centralization बहुत कम होता है because the जो मेन हेड होते हैं उनके पास उन लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है. एक डिसएडवांटेज है एक्चुअली इसका, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में पढ़ोगे भी, राइट? वन इज द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगेन सेम साइज मैं प्रॉब्ली फिर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. बड़ा है तो डिसेंट्रलाइजेशन, छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन. सिंपल, खत्म. ओके. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फटाफट रीडिंग लगाते हैं. ओके. सो सीनियर मैनेजमेंट फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजी. ठीक है, ऑब्वियसली. बेटर लोकल डिसीजंस ड्यू टू सर्टेन एक्सपर्टीज, बिकॉज जो अगर सपोज एक कंपनी है जो पूरे इंडिया में ऑपरेट करता है एंड सर्टेन डिसीजन हैज टू बी मेड इन दिल्ली, right? So that Delhi manager has the power to take the decision which will help in faster decision making process. That's it. Now, better motivation due to increased training, right? Quicker responses because smaller chain of command है. Easy. Disadvantages क्या, लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं रहता है सीनियर मैनेजर में, जैसे मैंने बोला. पोर डिसीजन मेड बाय इनएक्सपीरियंस मैनेजर. आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी लगती है आपको, जो आप अभी एम्प्लॉयज को आपको बोलना पड़ेगा व्हाट आर द सर्टेन systems which you follow, right? You will have to tell this. Now उसके लिए भी एक कॉस्ट है which you will have to bear. So this is also a cost. Now duplication of roles हो सकता है. मैं एक ही काम के लिए अगर 3 बंदे लगाता हूँ तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ रही है, मेरा काम भी ढंग से नहीं हो रहा है. सो ये डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है. ओके. एक्स्ट्रा कॉशन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन. दिस इज लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी. ठीक है. सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी: स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल. ओके. ये मैं लिखता हूँ.
स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल शायद, हाँ टैक्टिकल, टैक्टिकल की स्पेलिंग करेक्ट, हाँ ऑपरेशनल। ओके, स्ट्रैटेजिक क्या होता है? Strategic is strategic decision, strategic planning, strategic decision making is one of the same thing. इसको हम एंथनी ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है? When you make this, I'll show you the picture itself only, ठीक है? You call this as एंथनी ट्रायंगल, not so necessary but हाँ extra point, why not, ठीक है? एंथनी ट्रायंगल। So strategic tactical, strategic क्या होता है? It is a type of, it is a plan which is done by the senior managers, which is the decision, जो senior managers होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि कैसे कौन सी चीज़ों पे ऑपरेट करना है, and I'll tell you that कौन सी चीज़। So first one is senior managers, okay, then is this is for long term decision making, ये कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होगा, बिकॉज आपने पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। अभी जैसे मैं लेक्चर चालू करा था, फर्स्ट में पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा, आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म का काम ऑपरेशनल का काम है, आपका नहीं है। आप स्ट्रैटेजिक लेवल पे काम कर रहे हो भाई, ऑपरेशनल लेवल पे काम नहीं कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक लेवल पे सोचो यार, मैं तो जो डिसीजंस बहुत हेल्पफुल है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं तो वो सोचूंगा। वाई विल आई थिंक ऑफ ऑपरेशनल, राइट? सो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म के लिए है, जो लॉन्ग टर्म फायदा देगा, शॉर्ट टर्म बिल्कुल फायदा नहीं देने वाला। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? आपको इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, ठीक है? आपको अगर ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, इन्वेस्टर से आपको पैसा उठाना है, मतलब the investor will give you a certain x amount, and he'll take a certain stake in a company, generally 10, 20, 30, 40% depending on the negotiation. Understood? This is called strategy. Tactical, tactical is done by middle management, okay? And टैक्टिकल मतलब होता का है, किधर होता है भाई, होता किधर है? ये जो सेपरेट डिवीजन, आप डिविजनल स्ट्रक्चर में जाइए, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस स्ट्रक्चर में, तो जो स्पेसिफिक डिविजन्स होते हैं, राइट, ये यहाँ पे काम आएगा, ओके? मीडियम टर्म होता है, बहुत लोग, आई वुड से दैट दिस इज मोर देन 5 years, ठीक है? दिस इज 1 to 3 years, दिस इज डे टू डे, ठीक है? ऑपरेशनल, ऑपरेशनल में क्या होता है? जो भी जूनियर मैनेजर्स होते हैं, ठीक है? जूनियर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स, ये सब ऑपरेशनल लेवल में आ जाएंगे। एक मिनट, आई शुडंट हैव डन दैट, वो गंदा दिख रहा है, ओके नेवर माइंड। सो जूनियर मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स आते हैं, इनका काम क्या होता है? कब मैं स्टॉक को स्टोर करूं, कब मैं स्टॉक मेरे दुकान में लाऊं, उसको बोलते हैं, किसका काम है? ये ऑपरेशनल लेवल का काम है, ठीक है? सो व्हेन टू स्टॉक, ठीक है? व्हेन टू एडवर्टाइज, ओके? व्हेन टू एडवर्टाइज, अंडरस्टूड? और इसको बोलते क्या? एंथनी ट्रायंगल, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजी क्या करता है? स्ट्रैटेजी किसके मतलब अंडर, हु डज दिस, हु डज द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पार्ट? सीनियर मैनेजर्स। What do they do? What do they more focus on? They focus on long-term decision making process. What is the example of it? The example of it is to raise money from the investors. Understood? Same tactical, same operational. तीन main points. कौन कर रहा है, ठीक है? कौन कर रहा है, देखें उसका फायदा क्या है, ठीक है? कब वो काम आएगा, थर्ड उसका एग्जाम्पल। ये तीन चीज़ आपको याद रखना, ठीक है? स्टार्ट और रीडिंग भी लगा देते हैं। Strategic planning is undertaken by senior managers and it involves making long-term decisions, as I said, for the entire organization. Tactical planning is undertaken by middle management. It tends to look at plans for specific divisions or departments and specifies how to use resources. Third one is operational planning is undertaken by junior managers and supervisors. It is short-term, detailed, and practical. बस सिंपल। हाँ, ये roles and functions I'll not be discussing. Why? I'll tell you why. This is nothing. I'll tell you उसका आपको याद क्या करना है, आप बस ये याद कर लीजिए,
अगर सपोज पूछेगा व्हाट आर द सम ऑफ द, ऐसे पूछेगा तो कि एमसीक्यू है, बट अगेन इफ यू आर थिंकिंग कि ये टॉपिक थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है जो मुझे नहीं लग रहा है एट दिस पॉइंट, सो अगेन व्हाट आई टेल यू, व्हाट स्मार्ट रीडिंग है, बस ये पढ़िए, जो डिपार्टमेंट है वो पढ़िए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, परचेसिंग हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, सर्विस ऑपरेशंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, ये पढ़िए। दिस इज वेरी बेसिक, मतलब आई टेल यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या है भाई, मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मैं सर्टेन जो भी डिस्पेरेंसीज है उसमें मैं चेंजेस ला और एक मैं नया प्रोडक्ट भी डेवलप करूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट था, ये रोल था। इसके कंसर्न्स क्या है भाई, ये कैसे चीज़ों पे देखेगा, ये देखेगा कि एंटिसिपेटिंग में मेरे कस्टमर के नीड्स क्या है, ठीक है। अब जो भी मैं रिसर्च करूंगा, जो भी मैं डेवलपमेंट करूंगा, उसका क्या कॉस्ट रहेगा भाई, उसकी कॉस्ट भी तो होती है, तो बस यही है। सो डिपार्टमेंट आप याद कर लीजिए, डिपार्टमेंट क्या हो गया, रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर हो गया, देखो मैं खुद मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ये टॉपिक, रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर हो गया। सेकंड क्या हो गया, फाइनेंस हो गया, चलो फाइनेंस है, हमेशा सोचना आप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर रहेगा, फाइनेंस रहेगा, मार्केटिंग रहेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, तो चार याद आके बस है भाई साहब, बस। हाँ, नेक्स्ट। ओके, क्या मिस कर दिया हमने, सर्विस ऑपरेशंस, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज मेंट बाय मार्केटिंग, मार्केटिंग सो क्या था मार्केटिंग, ट्वेल्थ का डेफिनेशन इज द एक्ट ऑफ, इज द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, हाँ, इज जहाँ तक मुझे याद है, इज द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, बट यहाँ पे हम ट्वेल्थ का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केटिंग इज डिफाइंड बाय द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एज अ मैनेजमेंट प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज, anticipates and supplies customer needs efficiency and profitable। आप आपके नोट्स में ये डेफिनेशन प्लीज लिखिए, ठीक है, ये मैं इधर नहीं लिखा, नो पॉइंट सब करने के लिए, ठीक है। Understood? The management process that identifies, anticipates, and supplies customer needs efficiently and profitably. Okay? The key emphasis, marketing हमेशा 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 कस्टमर नीड्स पे फोकस करेगा। मार्केटिंग हमेशा 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 कस्टमर नीड्स पे ही फोकस करेगा, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है मार्केटिंग का, बस कस्टमर नीड्स पे, मेरे को मेरे कस्टमर के नीड्स पर, दैट्स इट। नाउ आइडेंटिफाइंग एंड सप्लाइंग कस्टमर नीड्स एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, यहाँ पे दो मेन टर्म्स का बहुत आप क्या करना अपने बुक में, मेक अ टेबल। ओके, अरे यार ये क्या टेबल बनाता हूँ मैं, हाँ, नेवर माइंड, सॉरी। ओके, यहाँ पे आप लिखना मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। मार्केटिंग का, अरे यार ये ऊपर क्यों चले जाता है, ठीक है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, भाई मेरा काम है फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, दैट्स इट, बस है। I have to focus on my customer needs. That is the basic base. That is the base of marketing. What is product? Boss, I will create the best product apart from my competitors. खत्म, बात खत्म। बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल्दो आई डोंट नो व्हाई इज दिस इवन अ टॉपिक, बट हाँ जब टॉपिक है तो पढ़ना पड़ेगा। सो मार्केटिंग ओरिएंटेशन, सॉरी, ओके, सो मार्केटिंग ओरिएंटेशन हो गया, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन हो गया। मार्केटिंग ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, आई हैव टू फोकस ऑन माई कस्टमर नीड्स, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। Whereas product orientation में क्या, आई हैव टू मेक द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम माई कॉम्पिटिटर्स, दैट्स इट, फिनिश, खत्म 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 खत्म। पर जब आप प्रोडक्ट ओरिएंटेशन पे फोकस करते हैं एज अ बिजनेस, आप सोचो, आप आपने डिसाइड करा है आई विल मेक द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, व्हाट प्रॉब्लम यू आपको आ सकती है, यार अगर मेरे को बेस्ट प्रोडक्ट करना है इसका मतलब मुझे सबसे बढ़िया क्वालिटी बनानी पड़ेगी, अगर मेरे को बढ़िया क्वालिटी बनानी पड़ेगी तो क्या मेरे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, ठीक है, विच विल रिजल्ट इन हाई कॉस्ट, will that high cost justify my target segment, right? So this is a big problem. You will make the best product, हमेशा रहना, best product will never win, will not all, I won't say never, will not always win in the market, right? आप अगर अपने कस्टमर नीड्स पे फोकस करते हो,
you will definitely, you'll at least get a good share of the market. पर अगर आप जब product orientation पे आते हो and you decide to make the best possible product, these are the challenges you will face. आपको बेस्ट क्वालिटी बनानी पड़ेगी, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आएगा, मतलब आपके लिए बहुत हाई कॉस्ट है। हाई कॉस्ट मतलब क्या है, आपको जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो हाई रखना पड़ेगा टू कवर योर कॉस्ट। अगर वो हाई रखता है, इज दैट जस्टिफाइंग द कस्टमर परसेप्शन? Is it justifying the target segment? Is it, fulfilling the needs of their particular target segment? Right? This is the main difference between marketing and product orientation. Okay. Marketing mix. Right? I guess हाँ इतना ही है। एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। I feel this is the best explanation I have given. Right? No. Okay, this is done. This is done. Marketing mix, यहाँ पे 4 P's दिया हुआ है, but I'll tell you first one, marketing mix के बारे में। ठीक है, ऐसे अपने बुक में आप ऐसे लिखिए, 7 P's. Okay, don't write 4 P's, you'll get confused, you'll not remember. Then write 7 P's. They have segregated into 4P plus 3P. You don't need to write 7P, it doesn't matter. Okay, so marketing mix 7 P's. ठीक है, 7 P's में क्या क्या आता है? एक तो 4 P's तो हमको मालूम ही होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। रेस्ट 3 क्या है? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? हमारे कॉटलर भाई। भाई मेरे को उनका पूरा नाम नहीं मालूम, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव नॉट, आई जस्ट read about him, but he is the father of modern marketing. That's it, right? इनका नाम पूरा करके कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए। ओके, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, दिस इज एक एक्स्ट्रा पॉइंट, राइट? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। भाई प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट में भाई, अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या आएगा यार? मैं मेरा पैकेजिंग रहेगा, ठीक है, उसके पीछे लेबलिंग रहेगा, ठीक है, ठीक है, प्रॉब्ली डिज़ाइन रहेगा, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस भी रह सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्या रेंज है, मेरे क्या SKUs है। SKU इज़ अ वेरी प्रोफेशनल टर्म, यू कैन यूज़ दिस, राइट? ठीक है, प्लेस क्या है, क्या मैं ऑफलाइन बेचता हूँ या मैं ऑनलाइन बेचता हूँ, ठीक है, मेरे क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, ठीक है, मेरे ट्रांसपोर्टेशन क्या है। आपने चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, विच इज़ व्हाट यू कॉल डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, राइट? ये है तो मेरा प्लेस, वो क्या है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, राइट? सो ये बहुत लंबा हो जाएगा। थर्ड वन इज प्रमोशन। भाई प्रमोशन, मेरे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कैसे करूँ? प्रमोशन कैन बी डन थ्रू पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग। Then you can do through sales promotion, which is basically, applying various tactics. Just a second, I'll just, right, sales promotion. Okay, then advertising, right? Basic, कुछ भी नहीं है इसमें। प्राइस, बस व्हाट प्राइस हमें पुट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है मेरे हिसाब से। बहुत इजी है, बट दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, यू डोंट नीड टू बी, तो कुछ भी नहीं है इसमें, राइट? प्राइस में, प्राइस लेवल्स में ये सब डिस्कस, जो डिस्काउंट आ रहा है, आई विल गिव यू। यहाँ पे प्राइसिंग टैक्टिक्स आते हैं, ठीक है, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक। प्राइसिंग टैक्टिक्स आते हैं। प्राइसिंग टैक्टिक्स में यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइसिंग्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब क्या है? दिस इज द बेसिक मेथड। भाई मेरा कॉस्ट क्या है? चॉकलेट बनाने की कॉस्ट मेरी 10 रुपये है, मैं बेचूंगा उसको 12 रुपये पे। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कितना है? 20% का प्रॉफिट मार्जिन है। सिंपल, ठीक है, अंडरस्टूड? कुछ भी नहीं, सिंपल, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय पेनिट्रेशन प्राइसिंग? भाई स्पेलिंग क्या है भाई? हाय राम, सॉरी गाइस, स्पेलिंग, आई वाज अ स्पेल बी चैंपियन, ठीक है। No, that's not a spell bee champion, but yeah. So second, so what is penetration pricing?
right? Okay, penetration pricing. I am putting such a low price so that I attract the maximum market share. Okay, best example Maruti Suzuki. जब मारुति अराउंड 2000 में आया था, he put a very low price to attract maximum. इसलिए you'll see that Maruti, this is why Maruti is famous. Maruti is famous because it can attract maximum market share. This is called penetration pricing. मैं आप definition से ज़्यादा एक example याद कीजिए, वो बहुत helpful रहेगा, right? Don't remember the definition just the sake of it. Remember the example, right? Third one is perceived quality. Okay, ये कौन सा है भाई? बेस्ट एग्जाम्पल मर्सिडीज. ओके, बेस्ट एग्जाम्पल मर्सिडीज क्या है? He is operating in a premium segment. Mercedes as a company is operating in a premium segment. So what does it? So it is basically reflecting a very high price. Although he will capture a very low market share, but that's a strategy, right? So what is perceived quality pricing? A high price is set to reflect, create an image of high quality. जब मैं penetration pricing बोलता हूँ, दिमाग में आना चाहिए भाई मारुति सुजुकी. जब मैं perceived quality pricing बोलता हूँ तो आया मर्सिडीज. This is how you should look at it. Fourth one is price discriminations. आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरली होटल्स के बिजनेस में देख सकते हो, ठीक है? होटल्स, फ्लाइट्स, ठीक है, रिसॉर्ट्स, ये सब में देख सकते हो, राइट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये बात है. मतलब क्या है भाई? अब जैसे मैं क्या दिसंबर 8 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो. अब दिसंबर 25 को द प्राइसेस ऑफ होटल्स आर गोना गो हाई बिकॉज क्रिसमस इज गोना कम एंड पीपल आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ देयर होम एंड स्पेंड फैमिली टाइम टुगेदर, राइट? सो क्या हो जाएंगे? सो दिस इज अ वे, राइट? दिस इज अ वे दैट इज कॉल्ड सीजन टाइम. सीजन टाइम इज द वर्ड. सीजन पे अपने प्राइस में अपने भाव बढ़ा दूंगा सो दैट आई मेक गुड प्रॉफिट्स, राइट? Second one is going rate pricing. It is basically a price which is as a price uh, which matches your competitors. So going rate pricing, going rate, ठीक है? बेस्ट एग्जांपल क्या दूँ? बेस्ट एग्जांपल नोटबुक. नोटबुक इंडस्ट्री. ये जो नोटबुक होती है, देर आर मेनी पीपल, जैसे क्लास वर्ल्ड हो गया, क्लासमेट हो गया, दीज गाइज ऑपरेट ऑन अ वेरी सिमिलर व्हाट यू कॉल प्राइसिंग. तो 35 का बुक है तो वो भी 35 में बेचेगा. इट जस्ट टू मैच द कॉम्पिटिटर्स, ना कम ना ज्यादा. नेक्स्ट, सिक्स वन इज प्राइस skimming. Price skimming is the same as perceived quality, but you cannot take the example of Mercedes over here. I'll tell you why. प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? मेरे सर्टेन क्वालिटी के लिए आई एम चार्जिंग हाई प्राइस. परफेक्ट, परफेक्ट. अपने सर्टेन क्वालिटी के लिए आई एम चार्जिंग हाई प्राइस, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई विल ड्रॉप डाउन द प्राइस. बेस्ट एग्जांपल इज एप्पल. एप्पल डज दिस, ठीक है? एप्पल करता है ये. ही विल फर्स्ट इंक्रीज द प्राइसेस, तो he is gonna skim the potential customers and then he'll reduce the price. Understand? Apple is the best. Price skimming आना चाहिए कि अरे हाँ एप्पल है, और यही परसीव क्वालिटी अरे हाँ मर्सिडीज है, लाइक ऐसे आता. सेवेंथ वन इज लॉस लीडर एंड कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, राइट? ओके, लॉस लीडर एंड कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग. अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? बस लॉस लीडर बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ टेक्निक विच मेनी कंपनीज, मेनी कंपनीज अडॉप्ट, जिसके मल्टी प्रोडक्ट्स. वही मैं आपको डेफिनेशन एटलीस्ट बोल देता हूँ. लॉस लीडर क्या है? मेरे पास दो प्रोडक्ट है, ठीक है? सपोज मेरे पास हाँ, ये बुक है, ये पेन है, राइट? ये बुक है, ये पेन है. मैं ये पेन को लॉस में बेच दूंगा, बट मैं जो मेरा लॉस है मैं ये बुक के प्रॉफिट से वो कवर कर दूंगा. आपको समझ में आ रहा है? ये पेन है, ये बुक है. ये पेन में शायद लॉस पे बेच दूं, बट ये बुक के प्राइस से मैं ये पेन का कॉस्ट भी रिकवर, उसको लॉस लीडर बोलते हैं, ठीक है? What is captive product pricing? Right now, this is your customer must buy two products, right? The first one is cheap to attract customers. Now again, ये दो एग्जांपल कर लेना. ये भाई सपोज ये बुक बहुत चीप रहेगा, बट ये फिर पेन महंगा कर देंगे. आप समझ रहे हो? ठीक है? दिस इज हाउ द वेरियस
नो प्राइसिंग टैक्टिक्स विच कंपनीज अप्लाई इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो, आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रमोशनल इश्यूज, वाह, इसका है एडा, एडा, वाह, क्या शॉर्टकट है। सो प्रमोशनल इश्यूज, राइट, व्हाट आर योर प्रमोशनल इश्यूज, ओके। ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, यस। डी स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, परफेक्ट, परफेक्ट। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। एंड नाउ यू नो टाटा सियारा इज लॉन्चिंग, अभी सियारा गाड़ी बोल के आ रही है विच इज अ 40 years old car but they are coming with a new version. What if they don't follow all these four? They are in a problem, right? Abhi it's a 40-year-old car, and if you don't revive that legendary car, how will that product enter into the market, right? It won't. So उसका टाटा सीआर का देखो अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग, राइट। फिर क्या, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, जो प्रॉब्ली ओल्ड सियारा ओन करते थे माइट गो एंड बाई दिस न्यू सियारा, राइट। फिर एक डिजायर आती है, फिर वो खरीद, राइट। पर ये इश्यूज है, ये प्रमोशनल कोई स्टेप नहीं है, दीज आर इश्यूज। क्या अवेयरनेस एक इशू हो सकता है, इंटरेस्ट भी एक इशू हो सकता है। प्रॉब्ली टाटा सियारे की अवेयरनेस बहुत अच्छी है, पर लोग, पर गाड़ी उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, तो शायद इंटरेस्ट ही ना हो, right? But these are the issues, these are not the steps. Please note that. डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया था, एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन, ठीक है, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। आई मिस पब्लिक रिलेशन हो गया, सो पब्लिक रिलेशन एग्जांपल स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, टाटा करता है, अंबानी करता है, सब करता है। नो प्लेस इश्यूज, प्लेस इश्यूज, आई नो दिस थोड़ा, दिस लेक्चर इज गोइंग थोड़ा ज़्यादा देर, आई गेस, आई डोंट नो, बट हाँ, कंप्लीट कर देते हैं चैप्टर। सो सेलिंग डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। भाई डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर है वो मैन्युफैक्चर है, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच देगा, परफेक्ट। एग्जाम्पल, what do I take the example as? If I don't know if bold fit, just you know, this is the bold fit bottle है ये, अगर बोल्ड फिट खुद ये बॉटल बनाता है और मुझे पहुंचा देता है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट चैनल, ठीक है। इनडायरेक्ट चैनल में दिस विल गो through probably a wholesaler, then this will go to a retailer, and then this will come to me, right? Best example. So मैन्युफैक्चरर के बीच में आपका होलसेलर आ सकता है, आपका रिटेलर आ सकता है, आपका फिर एंड कंज्यूमर आ सकता है, बस उतना ही। फूड, ये बोल फिट से अच्छा था, फूड फूड इंडस्ट्री बहुत है, जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, जवारी हो गया, दिस इज दिस इज ये इनडायरेक्ट ही काम होता है, डायरेक्ट बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इंडिया में आप सोचो कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वी आर स्टिल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एज अ कंट्री, एंड इसलिए वो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इतना बड़ा प्रोसेस है, ओके, इजी। वेरिएशंस, ये मत समझना कि जो मार्केटिंग में से उसमें प्राइस ही इंपॉर्टेंट है। ओह, एक मिनट, मैंने शायद जो 7 P's है, ओके, आई जस्ट यू नो व्हाट कॉल प्राइसिंग, ओके, आई एक्सप्लेन द पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस एज वेल। आई डोंट नो क्यों आया, क्यों नहीं है, आई मिस्ड इट, ओके। इससे जाने से पहले ये टॉपिक, सो अगेन मार्केटिंग मिक्स में ज़रूरी नहीं है a business should only focus on a particular marketing mix, right? It is very necessary, it is very important that each and every business focuses, gives equal importance to each marketing mix, okay? So 4 P's तो मैंने आपको बोल दिया, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। अब what are the other 3 P's, ठीक है, आया other 3 P's, people, people, process, physical evidence, ठीक है। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। पीपल का बेस्ट एग्जांपल है, अगर मेरे एम्प्लॉय, सपोज मैं एक होटल चला रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज काफ़ी फ्रेंडली नहीं है, सो इज दैट अ नेगेटिव थिंग फॉर माई कंपनी? डेफिनेटली यस। मेरे एम्प्लॉयज दे शुड
देर इज अ थिंग कॉल्ड एज हॉस्पिटैलिटी विच हैज टू बी मेंटेन, राइट? मैं होटल में रह रहा हूँ, दैट थिंग हैज टू बी मेंटेन, सो आई नीड पीपल टू डू दैट, आई कैनॉट डू दैट अलोन, राइट? सो दिस इज वाई दिस मार्केटिंग मिक्स इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस, बेस्ट एग्जांपल मैकडॉनल्ड, आई विल जस्ट राइट होटल, राइट? मैं होटल लेता हूँ, एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेता हूँ, डेफिनेशन का कोई फायदा नहीं होता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब क्या? आप एक बेस्ट एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स का एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्डर ही होता है, सर्टेन वे ऑफ कुकिंग होता है, सर्टेन वे ऑफ एम्बियंस होता है, ठीक है? आप कभी भी दूसरे दूसरे आप इफ यू गो टू डिफरेंट मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी आउटलेट्स, राइट, you will never find there is any discrepancies in the ambience, in the decoration of the ambience, it is the same. So that is what that process they are maintaining, that unique way of, that consistent way of delivering. आप कभी भी आप फ्राइज भी खाओगे वहां पे, you will find the same taste. That's what they have cracked. So that's why process is also very important when you expand your business. फिजिकल एविडेंस, राइट? अभी सपोज ये होटल बिजनेस ही लूंगा मैं, होटल बिजनेस में अगर मेरे पास क्लीन रूम्स है, ठीक है, माई कॉरिडोर्स आर नीट, आई एम मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड हाइजीन विच इज एक्सपेक्टेड बाय माई prospective customers, fine, that's it. So ये है. So how many marketing mix? सेवन होते हैं, 7 P's होता है. हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? हमारे कॉटलर भाई, उनका फुल नेम कमेंट सेक्शन में एक बार दीजिए. और सो क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है? ओके, आई गेस दिस इज द लास्ट टॉपिक. यस, दिस इज द लास्ट टॉपिक. चलो खत्म करते हैं इसको. ओके, so I'll know what is strategic marketing process. क्या लिख रहा हूँ भाई मैं? स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस, राइट? नाउ मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट व्हाट शुड बी माय वे? व्हाट आर द सर्टेन एक रूल बुक दैट आई शुड फॉलो? ठीक है, फर्स्ट आप अपने ब्रांड स्ट्रेंथ का खुद एनालिसिस करें. ब्रांड स्ट्रेंथ एनालिसिस, ठीक है? आप अपनी रेप्यूटेशन देखिए, आपकी मार्केट में क्या है, गुडविल जिसे बोलते हैं, रेप्यूटेशन, गुडविल, ठीक है? दिस इज रिक्वायर्ड, राइट? और क्या है इसमें? आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करें. सबसे बड़ी दिक्कत, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज नहीं करना. यू हैव टू एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स सो दैट प्रॉब्ली आप जो मिस्टेक्स आपको दिख रहे हैं, यू डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स, राइट? मार्केट रिसर्च करना चाहिए, प्रॉपर मार्केट रिसर्च, ठीक है? दैट्स इट, ठीक है? ये हुआ. अब भाई मैं नेक्स्ट क्या करूँगा? चलो, अब मैं सोचूंगा यार, मैं कौन से प्रोडक्ट बेचूं, व्हाट प्रोडक्ट्स टू सेल, ठीक है? मेरे व्हाट इज माय टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस क्या है मेरी, ठीक है? यार ये बड़ी दिक्कत है, ठीक है? टारगेट ऑडियंस क्या है मेरी? सिक्स्थ, मेरे पोटेंशियल मार्केट सेगमेंट्स क्या है? मतलब क्या? दीज मार्केट सेगमेंट्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन जोग्राफिक, ठीक है? द जोग्राफिक एज, and you have probably based on gender as well. We'll read that below. So you have these, right? So क्या market segment क्या है मेरा? Who, which age group I'll be भाई? आप अच्छा बता, फर्स्ट क्राई कंपनी जो टॉयज बनाती है, who sell toys, ठीक है? अगर आप वो पीपल एजेड बिटवीन 25 to 30 के बीच में अगर आप टारगेट करो, तो गलत टारगेट सेगमेंट हो गया ना आपका. यू हैव टू टारगेट फ्रॉम 0 to 10, जो भी 0 से 10 के बीच में बचे होते हैं उनको टारगेट कीजिए. दैट इज कॉल्ड योर मार्केट सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड टारगेट ऑडियंस. ओके, अब ये सब तो हो गया यार, मैंने सब प्लानिंग कर ली. ओके, व्हाट इज माय इम्प्लीमेंटेशन? आई विल सेट बजट्स, ठीक है यार? व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मोड आई डू? सेट बजट, मेरा सेल्स टारगेट क्या होगा, ठीक है? मेरा यार ये फिर से ऊपर चला है. सेल्स टारगेट, ठीक है? मेरा मार्केट शेयर, मेरा पोटेंशियल मार्केट शेयर इन माई 5 years क्या होगा, ठीक है? और अगर चलो ठीक, ये सब भी हो गया, तो मैं इसको मॉनिटर कैसे करूँ एंड कंट्रोल कैसे करूँ? दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके,
ये बहुत इजी है। स्ट्रेटेजिक, सो दिस पार्ट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या था, डेस्क रिसर्च। आप डेस्क रिसर्च को यू कैन, आई डोंट नो इफ यू कैन राइट, सो डेस्क रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी रिसोर्सेज, जो ऑलरेडी अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, बुक्स पे, दैट इज कॉल्ड। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट ये डेस्क रिसर्च मैंने चालू करा, मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करा। सो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फर्दर एनालिसिस। नाउ जो मार्केटिंग रिसर्च है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेस यू विल यूज, उसमें से पहला है डेस्क रिसर्च, दैट्स व्हाट आई मीन। डेस्क रिसर्च मतलब क्या, जो सेकेंडरी आप गवर्नमेंट के वेबसाइट से ले लेते हो, बुक्स आपने यार बुक्स से ले लेता हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस। फील्ड रिसर्च क्या है, प्राइमरी सोर्स। आप जाके लोग को इंटरव्यू करते हो, आप जाके प्रॉब्ली यू पिक रैंडमली फ्यू पीपल एंड देन यू आस्क, यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नोटबुक कंपनी, राइट? दिस इज कॉल्ड फील्ड रिसर्च, राइट? फील्ड रिसर्च। टेस्ट मार्केटिंग। Test marketing is most popular in perfume brands. अपना बेला वीटा हो गया, पार्क एवेन्यू हो गया, और क्या क्या आता है, और क्या आता है यार, टाइटन, टाइटन का भी अभी चालू हुआ है। सो टेस्ट मार्केटिंग में यू विल हैव परफ्यूम्स, परफ्यूम्स इज द बेस्ट एग्जांपल भाई। few people they'll test, if it feels good then the product is fit, product market fit, p product PMF बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है? टेस्ट मार्केटिंग मतलब यू ओनली सेलेक्ट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और उनको अगर अच्छा लगता है तो भाई मैं ये बेचूंगा, वरना मैं नहीं बेचूंगा, राइट? स्वीट्स ले लो, गुजराती पीपल लाइक स्वीट्स, राइट? सो यू टारगेट गुजराती गाइस, राइट? बिकॉज दे लाइक स्वीट्स, सो दैट्स हाउ यू टारगेट, सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट मार्केटिंग। आप, अगर आप टेस्ट मार्केटिंग नहीं करते हो, प्रॉब्लम क्या होती है, you are already distributing a lot of things and you are incurring many costs which is not required. Just test a particular segment, okay? Jैसे market can be segmented, so based on geographic, north, south, east, west, demographic, age, sex, income, etc. Psychological, older people are more security conscious, right? Socioeconomic class based system, suppose A B's, A B हमारे में जनरल एस सी एस टी होता है, राइट? अच्छा, ओके गाइस, ये चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे। And yes, I'll bring all the test your understandings and exam kit in a separate video because I don't want to mix it, वरना बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं क्या क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में करना चाहता हूँ, सो जिसको सिर्फ क्वेश्चंस देखना है वो सिर्फ क्वेश्चंस देखेगा, जिसको कॉन्सेप्ट देखना नहीं वो कॉन्सेप्ट क्यों देखेगा? तो जिसको क्वेश्चंस देखना है उनके लिए क्वेश्चंस के लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड यस, और 22 MCQs। Okay, the organizational culture in business, इसमें क्या क्या है? So components, influence, okay, okay, this will be, ठीक है, थोड़ा बोरिंग है ये चैप्टर, बट हाँ, थोड़ा what do you call, this is more based on राइटर्स जो लिखे हैं, जो सेट करे हैं, जैसे फेयल और टेलर था 12th में, वैसे, राइट? ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।